सो वेलकम बैक बच्चों, मैं विजीत आनंद फिर से आपके सामने आर्म्स एकेडमी की तरफ से सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 6 कोलिजन का पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें हम लोग कोलिजन्स के और भी सारे क्वेश्चंस देखेंगे एंड लास्ट बाउंसिंग ऑफ ए बॉल में डिफरेंट केसेस देखेंगे। जब बॉल बाउंस करता है तो किस हाइट तक वो जाएगा, टोटल हाइट का समेशन, टोटल टाइम का समेशन वगैरह इसमें हम लोग देखेंगे। और आज हमारा कोलिजन का पार्ट खत्म होते ही हमारा सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, कंप्लीट करते हैं एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी कैन स्टार्ट रोटेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। तो अपना सबसे पहले क्वेश्चन ये है अपना सामने, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ए बॉब ऑफ मास, अ बॉब ए ऑफ पेंडुलम, एक बॉब है जो ऑफ ए पेंडुलम ऑफ मास m, एक बॉब यहाँ मास m का, रिलीज फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से करके छोड़ा गया तो वर्टिकल मोशन में वो मूव करेगा। इट्स अनदर बॉब, एक अनदर बॉब को वो हिट करता है b ऑफ द सेम मास एट रेस्ट which is at rest at the bottom of the table, at the bottom on a table as shown in the figure. If the length of the pendulum is 1 meter, ये pendulum का length 1 meter है, then what is the speed with which the bob starts moving to the left? तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो सबसे पहले when a bob is coming from a height to a different at the bottom, there will be change in the speed or it will acquire the velocity by applying conservation of mechanical energy. अगर हम लोग conservation of mechanical energy by COME में क्या बोल सकता हूं सर? velocity will be equal to root under 2gh। जब भी कोई बॉडी को ऊपर से छोड़ा जाता है तो बॉटम पे h हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है? रूट अंडर 2gh, यानी मतलब रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू हाइट इज 1 मीटर, सो इट इज रूट अंडर 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब बॉब यहाँ आएगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? रूट अंडर 20 मीटर पर सेकेंड। जब वो हिट करेगा इस बॉल को, सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, सिंस द collision is elastic, then what will happen? And the mass of the bodies are same, mass of the bodies are same, then velocity will interchange. velocity का क्या हो जाएगा? velocity will interchange implies velocity of ball B will be what? root under 20 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा सर? 0। हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। then what is the question? What is the speed with which the bob B starts moving? the bob B starts moving with a velocity of 20। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन एज वेल एज स्पेशल केस ऑफ इट है। आपका ये इलास्टिक कोलिजन का तो क्वेश्चन था ही, मास ऑफ द बॉडीज आर सेम, ये इंपॉर्टेंट था। सिंस मास ऑफ द इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलाइडिंग बॉडीज आर सेम, सो वी कैन डू इंटरचेंज ऑफ द वेलोसिटी, और उस अनुसार से हम रूट 20 लिख सकते हैं। रूट 20 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी चार ऑप्शन में? तो 5 5 जा 25, नो नॉट ग्रेटर देन 5, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, सो 4, या ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन। सो इट माइट बी 4.47। हाँ या ना बच्चा? इट माइट बी 4.47। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज question number 7. Let me squeeze this one so that I might get space. Okay, what it is saying, initially the spring is at natural length and collision is elastic. A mass of m is coming with a speed v naught and it is going to hit the m. Then find the maximum compression of the spring during the motion. So I've already told, when there are two bodies connected with a spring, in the case of maximum compression on elongation, in the case of masses connected by spring, masses connected by a spring, for maximum elongation or compression, for maximum elongation
or compression, for maximum elongation or compression, both the bodies should move with a common velocity. Both the bodies must move with a common velocity. Must move with a common velocity. दोनों को common velocity से move करना पड़ेगा. Since this is mass m, this is mass m, and they will be colliding elastically, so for the I can number them number 1, number 2. So for the collision of 1 and 2, for collision of 1 and 2, what can we say? We can apply conservation of linear momentum. There is no need to apply conservation of linear momentum, as since a collision is elastic and masses are equal. Since collision is elastic and masses are equal, what can we do? We can do the interchange of the velocities. ये चीज masses are equal. What can we do? We can interchange the velocities. We can interchange the velocity. What will happen? Tell me. So velocity of mass 2, velocity of m2 will be equal to v naught, and velocity of mass m1 will be 0 after collision. हाँ ना? Now for now for 1, 2 and 3, for 2 and 3 we can apply 2 and 3 we can apply conservation of linear momentum. We can apply, how can we apply we can apply conservation of linear momentum. How can we apply? Because it will hit him and this body will start moving. Then only if we consider this as one system, then only spring force is the internal force that is acting, no external force. This will come and hit it, give an impulse to this m2, and this both bodies will start moving. और इन दोनों के बीच में बस जो internal force लगेगा वो spring force होगा, कोई external force will not be acting in the x direction. So what we can apply? Conservation of linear momentum. तो conservation of linear momentum लगाने पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? Sir, pi must be equal to pf. What is the initial momentum? Sir, m into v naught is equal to, initially what is the velocity of this one? 0, must be equal to, sir, m plus 2m. दोनों की common velocity होना चाहिए. Into v dash. So what is the v dash? The 3m, v naught by 3. This is the common velocity with which both bodies will be going. So what are they asking? Final compression. So we can apply what? Conservation of mechanical energy to find v naught by 3 na. So applying conservation of mechanical energy, we can find the maximum compression. Applying conservation of mechanical energy initially and at maximum compress. Initially and at maximum compression. And at maximum compression. What can we write? U initial plus K initial must be equal to U final plus K final. Initial, what is the potential energy? I think there was no compression, so 0. Kinetic energy half into m into v naught is equal to, finally what is the potential energy? Half K x max का compression हो चुका होगा, plus what is the kinetic energy? Sir, half दोनों masses के पास, that is 3m into v naught by 3 का whole square. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हाफ से तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, m into v naught kinetic energy ना, half m v naught square is equal to k x max का whole square
प्लस हाफ तो गॉन, 3 जा 9, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 3 ही हो जाएगा। सो के एक्स मैक्स कितना हो जाएगा बच्चा, बोलिए। सो के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम, या एम भी होगा, एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3, 3 माइनस 1 2, सो के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, x max square is equal to 2m v naught square upon 3. So if you want to find out x max, that is nothing but I think m v naught upon 2m v naught by 2m v naught by 3k, root under 2m by 3 naught into vk, v naught, root under 2m by 3k into v naught. Let us check. Root under 2m by 3k v naught, option number A. Yes or no? So it comprised of two concepts. It was a combination of two concept question in which once the collision is happening between mass number 1 and mass number 2, in which mass number 1 is moving with a velocity v naught. So it is an elastic collision and the masses are same, so they will do interchange of velocities. Once we know the velocity for mass 1, we can apply conservation of linear momentum to find the common velocity फॉर मैक्सिमम कंप्रेसर और मैक्सिमम इलोंगेशन। हम लोग लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट इट इज सेइंग, a ball of mass m, a ball is moving with a velocity 2 meter per second towards a heavy wall moving towards the ball with a speed of 1 meter per second as shown in the figure, assuming the collision to be elastic in nature. Find the velocity of the ball immediately after the collision. collision के just बाद आपको बतानी है क्या हो जाएगी, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। Since this is a wall and this is a heavy wall, what it does try to convey with the word heavy. हेवी बोल के ये कन्वे करना चाह रहा है कि जब बॉल उस दीवार को हिट करेगा तो वेलोसिटी ऑफ वॉल विल नॉट चेंज। ये तो कॉमन बात है, जब भी बॉल को आप फेंकते हो दीवार को वो हिट करता है तो क्या वॉल की वेलोसिटी चेंज कर जाती है क्या? नो, इट डज नॉट चेंज। बॉल की वेलोसिटी तो चेंज नहीं करती क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला इट इज हैवी एज वेल। तो हम लोग क्या करेंगे, और ये कैसा कोलिजन है, इलास्टिक, ये इन्होंने बोला इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। सो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो सपोज यहाँ पे बॉल 2 से जा रहा है 1 से जा रहा है, तो बिफोर कोलिजन, थोड़ा इसको छोटा कर देते ताकि मैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, या बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले बिफोर कोलिजन में क्या हो रहा है जरा देखिए। बिफोर कोलिजन ये बॉल जा रही थी किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये जाके दीवार से टकराई। दीवार ये दीवार किस स्पीड से आ रही है, दीवार इज कमिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए सर। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा सर? बॉल हिट होने के बाद ये दीवार तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ये दीवार अभी भी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी 1 मीटर पर सेकेंड से, बट बॉल की स्पीड हमें नहीं पता। बॉल टकरा के लौट रहा होगा और बॉल की स्पीड हम v मान लेते हैं, हाँ या ना? तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं E की वैल्यू, E इज इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 इम्प्लाइज E की वैल्यू 1 ले लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो v2 वेलोसिटी क्या हो जाएगी जरा बोलिए। v2 मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, इट विल बी व्हाट, -1, इधर जा रही है, माइनस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल, मुझे नहीं पता, बट टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है
माइनस वी ही मान के चलते नेगेटिव तरफ जा रही हो, डिवाइडेड बाय u1 बॉल की वेलोसिटी क्या थी 2 माइनस बॉल की वेलोसिटी क्या थी सर -1 आया ना। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 इंटू 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू -1 प्लस वी, वी की क्या आ जाएगी वेलोसिटी, आई थिंक माइनस माइनस प्लस, पहले v1 की वेलोसिटी कितनी थी, v1 इज v2 मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू आफ्टर -1 माइनस v1 मुझे नहीं पता, माइनस में मैंने डाला हुआ है, यानी v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आई हैव थॉट, 4 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड जस्ट आफ्टर द बॉल हैज हिट द वॉल। So we can use the concept of coefficient of restitution to find the velocity of the ball after collision from the wall. हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। अब अगर ये बॉल इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन नहीं होकर ऑब्लिक कोलिजन है, यानी टकराने के बाद दो डिफरेंट एंगल्स में जा रहा है ऑन ए प्लेन, देन दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन इन 2D एंड दिस इज प्रेटी मच पॉसिबल ऑन व्हाट, बिलियर्ड्स के टेबल पे बहुत अच्छे से पॉसिबल होता है। अगर आप कभी स्नूकर या बिलियर्ड्स खेले, दोनों एक ही गेम का नाम है, तो आप जब उसको स्टिक से हिट करते हो तो बॉल कैन गो इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन ए पर्टिकुलर प्लेन ऑफ द पूल टेबल। हाँ है ना। तो पूल टेबल पे वो डिफरेंट एंगल्स पे जा सकता है, बट वो एक ही प्लेन पे जा रहा होगा। सो बॉडी कैन मूव इन 2D मोशन इन दैट। तो हम लोग अगर वैसा भी क्वेश्चन आएगा तो दो ही चीज लगाना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई। तो कुछ नया करना नहीं है। अगर एक बॉल m1 है m2 है, दोनों u1 और u2 वेलोसिटी से जा रहे थे, कोलिजन के बाद मान लीजिए मास 1 बॉडी अल्फा एंगल पे v1 वेलोसिटी से चला गया, मास 2 बीटा एंगल पे v2 वेलोसिटी से चला गया, then we can apply the conservation of linear momentum, क्योंकि collision मतलब conservation of linear momentum. So we can apply conservation of linear momentum in x direction and we can also apply the conservation of linear momentum in y direction. तो दोनों हम कर सकते हैं, अप्लाई करके हम अपना काम कर सकते हैं। Since it is a elastic collision, we can use kinetic energy initial is equal to kinetic energy final, that can be also found out. अगर एंगल्स की बात ज्यादा ना करें, एंगल्स निकालने को ना कहे, तो आप काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। Kinetic energy is very much applicable or very useful tool when angles need to be found out. जब एंगल निकालने की जरूरत ना नहीं पड़ेगी, तब इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस, तब ज्यादा आपको समझ में आएंगे कि इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास एक सामने क्वेश्चन है, I will do on the right side. First of all, let's see the question. A billiards ball moving at a speed of 2 meters per second strikes an identical ball इनिशियली एट रेस्ट। बॉल इनिशियली रेस्ट में था, एट ए ग्लांसिंग ब्लो मतलब टच करता हुआ निकल गया, ग्लांस मतलब देखते हुए निकल गया, टच करता हुआ निकल गया। तो ग्लांसिंग ब्लो मतलब टच करता हुआ निकल गया, बाय टचिंग। After the collision, one ball is found to be moving with a speed of 1 meter per second at 60 degree with the original line of motion. The velocity of the other ball, एक बॉल का एंगल दे दिया गया है, तो दे दिया गया है, तो चलिए इसको करते हैं। और क्योंकि आपको एंगल भी निकालना है क्वेश्चन में, देखो 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, यू नीड टू बी डूइंग विथ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला प्रिंसिपल से। तो चलिए थोड़ा देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, so a billiard balls moving at a speed of 2 meter per second strikes an identical ball which is at rest. So billiard balls जा रहा था किससे सर, मान लेते हैं मूविंग विथ स्पीड, बिलियर्ड बॉल मूविंग विथ आइडेंटिकल बॉल से, तो मास m ले लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और एक दूसरे बॉल से टकरा था जिसकी u2 कितनी है बच्चा 0। टकराने के बाद एक बॉल इस लाइन ऑफ मोशन पे निकल गया, किस एंगल पे निकल गया वो 60 डिग्री, 60 डिग्री विद ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। दूसरे बॉल का मुझे नहीं पता, दूसरे बॉल का मैं मान लेता हूं वो एट एन एंगल v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से एट एन एंगल बीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बीटा जा रहा है। तो हम x डायरेक्शन अगर इसके दो वेलोसिटी ले, एक इधर वेलोसिटी आएगी एक नीचे आएगी, एक इसकी इधर आएगी एक इसकी इधर आएगी, और वो वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पे निकला है। चलिए
we can apply by applying conservation of linear momentum in x डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन. सब देखिएगा क्या हो जाएगा बच्चा, बोलिए सर. m इंटू 2 m प्लस 0 इज इक्वल टू, टकराने के बाद व्हाट इज द मोमेंटम सर? m इंटू 1 cos 60, 1 cos मतलब 1 इंटू 1/2 प्लस दूसरे बॉडी का क्या हो जाएगा सर? m इंटू v cos बीटा. सामने वाला v cos बीटा और नीचे वाला v sin बीटा. v cos बीटा v sin बीटा, हाँ या ना? अगर मैं इसको करूं तो क्या हो जाएगा सर? मास 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 सबको अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2v cos थीटा. सो 2v cos बीटा इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1. या इसको हम कह सकते हैं क्या? v cos बीटा इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर 1. दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन. अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा जरा बोलिए सर? इनिशियली बॉल x डायरेक्शन में मूव कर रहा था और ये भी, तो इनिशियल मोमेंटम वाज 0. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा सर? m इंटू 1 इंटू साइन 60 √3/2 प्लस m इंटू नीचे के डायरेक्शन में तो माइनस v साइन बीटा. क्या हो जाएगा बच्चा? m से m गॉन, तो v साइन बीटा √3/2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2. अगर आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते, क्या आ जाएगा? b साइन बीटा बाई v cos बीटा, tan बीटा √3/2 डिवाइडेड बाई √3/2 डिवाइडेड बाई 3/2. 2 से 2 चला गया, 1/√3 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा बीटा. सो बीटा इज 30 डिग्री, 1 was 60 degree already given, बीटा इज 30 डिग्री, and we can find out the velocity as well. So velocity will be what? Cos 30 is √3/2. So √3 cancelled and the value is √3. So we can find out from by putting this value in equation 1. हम लोग अगर इक्वेशन 1 में रख दें तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 आ जाएगी. √3 आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू 30 डिग्री आ रही है, तो 30 डिग्री 60 60 30 √3 1. So option number A is correct to the original line of the motion. So by using the conservation of linear momentum in x and by using the conservation of linear momentum in y, we have already done this question. Next, so okay, this is also one question. This is a previous year question of NET. Two spheres A and B of masses m1 and m2 respectively collide. दो स्फीयर कोलाइड करते हैं. A is at rest initially and B is moving with the velocity of v along the x-axis. After collision, B has a velocity v/2 in a direction perpendicular to the original line of the motion. Mass A is moves after collision in the direction. What is the direction? Okay. So for finding the direction, we need to apply the conservation of linear momentum concept in both the axes. Okay. ओके, चलो करते हैं. क्या कह रहा है? Two spheres A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with a velocity along the x-axis. So there is a ball A which is at rest. So u of A or u let it be 0. There was a ball B which was coming in the x direction with a velocity of v along the x-axis was moving initially b and is moving with the velocity v. इसकी velocity v दी हुई है. After collision, b has a velocity v/2 and direction to the original line of motion से original line of motion से velocity of b क्या हो जाएगा? perpendicular है, कितना? v/2 है. a की velocity मुझे नहीं पता, बट हम इधर दे देते हैं, किधर? at an angle बीटा, और velocity v दे देते हैं. क्या दे देते हैं? v dash. There is already one variable v used, so we have to give another name of the variable. So अगर मैं ध्यान दूं तो इसके पास क्या आ जाएगा सर? v dash cos बीटा
और नीचे क्या आ जाएगा, v डैश साइन बीटा। बोलिए। और चलिए, अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जरा बोलिए। सर अगर इसकी मास m2 थी, m की a and b of masses m1 m2 respectively, so this is m1, this is m2, this is m1. So what can we write? Sir m2 into v plus शून्य is equal to, सर उसका तो जीरो होगा, क्या आ जाएगा, m1 into cos beta, equation number 1. So we need to find out what the mass a moves after collision in the direction, किस डायरेक्शन में आपको बीटा निकालना है। okay, and it has to be found out in terms of tan theta. Okay, tan theta. So conservation of linear momentum in y direction से देखते क्या आता है। तो y डायरेक्शन से अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा बच्चा, चलिए देखते हैं। सर y डायरेक्शन से इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो, और इसका कितना है सर, सर m2 इंटू वी बाई टू प्लस क्या हो जाएगा, m1 इंटू माइनस वी डैश साइन बीटा। अगर मैं कंपेयर करूं तो v डैश साइन बीटा क्या आ जाएगा सर, m2 बाई m1 v बाई टू। अगर ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो अगर मैं डिवाइड करूं m1, अगर इधर m1 रहने दिया जाए, तो अगर मैं क्वेश्चन सेकेंड, तो m1 कैंसिल, साइन बीटा बाय कॉस बीटा, व्हाट डू यू गेट, m1 v1 was m1 v dash cos beta. So v dash get cancelled out, it becomes tan beta, and tan beta becomes what, sir m2 get cancelled out, v by 2 divided by v, 1 by 2 आ जाएगा। So implies beta is equal to tan inverse 1 by 2 below the x-axis. Theta tan inverse 1 by 2 the y-axis, no, to the x-axis. ऑप्शन नंबर डी, ये आराम से आ रहा है। हाँ, अगर आपको वेलोसिटी निकालने बोले तो वेलोसिटी आप किसी भी फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते हो, बट द वैल्यूज आर नॉट गिवन, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ m1 m2, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेते हैं सो दैट वी गेट द स्पेस फॉर डूइंग इट। चलिए अगर ये देखें तो थोड़ा टेढ़ा है। ओके, so what it is saying, a particle of mass m moving eastward with a speed of v collides with another particle of the same mass moving northward. एक नॉर्थ जा रहा है, किस ईस्ट, स्पीड v, the two particles coalesce, coalesce मतलब साथ में जुड़ जाते हैं, stick. The new particle of mass m2 will have moved with the northeasterly with the velocity of, इसमें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। अप्लाइंग क्या कह रहा है, एक मास जो है वो ईस्ट जा रहा है वेलोसिटी v से, दूसरा मास नॉर्थ जा रहा है v से, दोनों टिपकने के बाद नॉर्थ ईस्ट ही जाएंगे, विच वेलोसिटी से, v डैश पूछ रहा है आपसे। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट डज इट बिकम, टेल मी सर, व्हाट डज इट बिकम, थोड़ा बताइए। So we can write what, a mass into velocity plus there is a vector associated in this direction, that direction, m into v I cap plus m into v j cap is equal to 2m into v dash. So what does it become, v dash, v dash becomes sir vi by 2 plus vj by 2, आया ना। So what does it become, so v dash का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर, so v is common, v 1 by 2 square plus 1 by 2 square, so v by 2 root 2, so it becomes what, v by root 2, that is v by root 2
northeast direction, it will go in that direction. हाँ या ना? So you need to do with the vector sign y, because one is going in the east, one is going in the y. We could have found out using applying conservation of linear momentum in x and y as well. उससे भी करके आ जाता है, x में अलग करते y में अलग, बट इसमें डायरेक्टली बोला गया कि वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है. सो वी यूज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ वेक्टर. हाँ या ना? वेक्टर के साथ करके हमने कर लिया. चलिए आगे बढ़े. Okay, last question, not last question. Let us see which question is this one. Let us just squeeze and then try it by ourselves. What does it say? Sir, a mass, it is little shade, huh? Huh. A mass of 10 gram a mass of 10 gram moving horizontally with a velocity of 100 centimeter a meter, seems to be like 100 centimeter per second, strikes a pendulum bomb of mass 10 gram. Length of the string is 50 centimeter and the two masses stick together. The maximum height by which the system will now rise. Okay, so pretty much similar like the previous case questions जो हमने किए हैं. और यहाँ पे एक बुलेट टाइप का चीज जा रहा है. मास ऑफ 10 ग्राम, इसकी मास कितनी है? 10 ग्राम की है. स्पीड कितना है? आई थिंक 1 मीटर पर सेकेंड अगर मैं लेता हूँ. 1 मीटर पर सेकेंड अगर मैं लूं, 1 meter per second is a very small number. Let us take an example of 100 meter per second. It will go and hit with a bob of mass, another mass of 10 gram only, and gets an stick into it. उसमें जाके फंस जाता है. उसमें जाके फंस जाएगा. Then it will go like this up to a height of how much? You have to find the height. So first of all, we need to find out the conservation through conservation of linear by applying conservation of linear momentum. What we need to find out? The velocity of this ball. So pi must be equal to p final. P initial कितना है सर? 10 by 1000 into 100 plus 0 is equal to 20 by 1000 into some v dash. (200 meter per second अगर मैं मान के चलूं, this is the velocity of the combined body. Here it will be 2 and it will be 50 meter per second. Sorry. So v dash is equal to 50 meter per second. So we can use conservation of mechanical energy to find out the height. So v is equal to root under 2 gh. So h is equal to v square by 2g. 50 into 50 divided by 2 into 10. Since the answers is given in centimeter, I think it has to be centimeter only. So here it would be centimeter only. Otherwise it will go up to, mass is very small, no? So it is not comparable with the mass. So it will be, I think the velocity will be 100 centimeter only. So we can write what? We can write 100 centimeter. We can write 1 p final 1. So it will become what? It will become 1 by 2 meter per second. And so velocity, what will be the height? Sir, 1 by 4 into 2 into 10. That much meter. So we convert into centimeter by multiplying it by 100. What are we doing? ये जो दिया हुआ है, it is centimeter per second. Centimeter per second. So centimeter per second is equal to 1 meter per second. So mass into velocity is equal to mass, that is 10 gram plus bullet 10 gram into v dash. So v dash will come 1 by 2. So 1 by 2 meter per second. So velocity is equal to root under 2 gh. So h is equal to v square, that is 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 4 into 2 into gravity value is 10. So 1 by
4 into 2 into 10. If I want to convert it into centimeter, all the values are given. Multiplied by 100. So what we are getting, tell me? 100 divided by 80. So 10 divided by 10 is 10. And 10 divided by 8 is 1.25, I think, centimeter. Given? Yeah, 1.25 centimeter. So it was a easy question only, just that the writing centimeter or meter was written, I was a little confused. Okay, moving next. So हम लोग को इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एक डिफरेंस चार्ट मिला है, जिसमें इलास्टिक कोलिजन में व्हाट वी हैव सीन कि सर ई तो v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 होता है, ये हमें पता है. प्लीज मेंशन दिस चार्ट इन योर कॉपी, यू नीड टू रिमेंबर दिस चार्ट वेरी केयरफुली. सर इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 होती है, हम लोग जानते हैं. इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 होती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल. ये तो सब में ही होता है. ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हम सब कोलिजन में लगा सकते हैं, सारे कोलिजन्स में. सर इसमें भी तो फॉर्मूला यही होता है. इलास्टिक, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक. ये परफेक्ट है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली inelastic collision and this is partially elastic या partially inelastic जिसको बोल सकते हैं. ये partially है, ये perfectly है, तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी. Kinetic energy initial is greater than kinetic energy final. Why? Because some part of kinetic energy is utilized in deforming the body or increasing the potential energy or lost to the surrounding in the form of heat. And P initial is equal to P final in all collisions. ये सारे collisions में लगेगा. हाँ या ना? और ये थर्ड क्या है, पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक. इसमें ई की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में होगी. ई की वैल्यू 1 2 3 4 सॉरी 1/2 1.0.25 0.30 0.4 ऐसे दिया रहता है. और ई की वैल्यू तो सब में फॉर्मूला वाइज देखे तो यही आएगी. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगा सकते हैं सारे कोलिजन में. काइनेटिक एनर्जी इसमें भी इनिशियल जो होता है वो फाइनल से बड़ा होता है, क्योंकि सम फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डिफॉर्मिंग द बॉडी. ओके, नी की वैल्यू कितनी होगी बच्चा इसमें? सर 0.2 0.4 0.7 ऐसा होता है. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया बिटवीन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इन इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन भी जिसको बोलते हैं. नाउ द सेकेंड टॉपिक, द बाउंसिंग ऑफ द बॉल. जब भी एक बॉल को हम ग्राउंड पे छोड़ते हैं तो आप ध्यान दोगे, आप एक कोई भी हाथ में क्रिकेट बॉल, कॉस्को बॉल, टेनिस बॉल, कोई भी बॉल लो, एंड व्हेन यू रिलीज दैट बॉल, द बॉल आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड डज नॉट कम बैक टू द सेम लेवल एट विच यू होल्ड द बॉल. जिस लेवल पे आपने बॉल को पकड़ा हुआ था उसी लेवल तक नहीं आ पाता. अगर आ जाए तो इलास्टिक कोलिजन है. बट इन रियल लाइफ कुछ ये ग्राउंड की ई की वैल्यू 1 नहीं होती, उसकी 0.5 0.7 0.3, तो वो सेम हाइट तक नहीं आ पाता जिस हाइट से हम लोग उन्हें उसको रिलीज किया है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द बाउंसिंग ऑफ द बॉल. मतलब एक बार गया टकराया फिर टंग, तो ये अगर ये लेवल माने तो यहां से छोड़े टंग डंग 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 ऐसे होते रह जाएगा. सो मल्टीपल कोलिजन्स विल बी हैपनिंग. इनफाइनाइट टाइप कोलिजन होते 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 कभी ना कभी जाके वो रुक जाएगा. बट जिस हाइट से छोड़ा गया उस हाइट पे तभी आ पाएगा अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए. Let a ball fall from a height h and let it touch the ground with a velocity v taking time t to reach the ground. So what will be happening? एक बॉल को हाइट h से छोड़ा जाए तो ये बॉल जब आके टकराएगा टकराएगा टकराएगा, ये बॉल आके टकराएगा 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 टकराएगा, इसको हिट करेगा, फिर ये बॉल ऊपर उठेगा, यहां तक जाएगा, फिर ये बॉल उठेगा, यहां तक जाएगा. ये हाइट 1 मान लेते हैं. ये हाइट, डोंट यूज द सेम पेन सो दैट यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ये हम हाइट 1 मान लेते हैं, ये हाइट h2 मान लेते हैं. फिर बताइए क्या होगा? सर बॉल फिर अपने कुछ ये साइड पे जाएगा. लेट इट बी दिस एज
हाइट 3, फिर कुछ और कम जाएगा, इस तरह सो ऑन, बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, एंड सो ऑन इन्फिनाइट, अप टू इन्फिनाइट जाएगा ये, बहुत सारे कोलिजन्स होते रहेंगे। हाँ है ना सर? यहाँ पे वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हिट कर रहा है उसको हमको नाम देने दीजिए। सर जिस वेलोसिटी से वो हिट कर रहा है v, यहाँ पे जब उठ रहा होगा तो वो v1 से उठ रहा हो, हिट कर रहा होगा तो v1 से कर रहा होगा, फिर उठ रहा होगा तो v2 से उठ रहा होगा, v2 से हिट कर रहा होगा, फिर v3 से हिट कर रहा होगा, v3 से उठ रहा होगा, v3 से हिट कर रहा होगा, और यहाँ पे v से हिट कर रहा होगा। तो आगे बढ़े, यही चीज आपको नेक्स्ट स्लाइड में शायद दिया हुआ है। इफ यू सी, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ एक फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। एक बॉल को हाइट h से छोड़ा गया है, वो जाके हिट करेगा, फिर उठेगा v1 से, v1 से h1 हाइट पे जाएगा, फिर v1 से हिट करेगा, फिर v2 से ऊपर उठेगा, फिर v2 से जाके h2 कवर अप करके, फिर v2 से हिट करके v3 से उठेगा। सो बाय न्यूटन्स फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू। यहाँ पे अगर सरफेस टू को मास टू माने, तो यहाँ पे हमारा u1 is v, u2 is 0 and v2 is also 0 because ground will not move। तो यहाँ पे हम अगर इस सरफेस को 2 मान रहे हैं और इस बॉल को 1 मान रहे हैं, तो u1 की वेलोसिटी u है या v है, जिससे वो हिट करने वाला v, एंड v इज व्हाट, रूट अंडर 2gh। अगर h हाइट से छोड़ेंगे तो हिट करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, यहाँ v होगी, एंड उसकी v की वैल्यू कितनी होगी, रूट अंडर 2gh। तो अगर e, तो यहां से e की वैल्यू क्या आ जा रही है, e की वैल्यू आ रही है, e की वैल्यू इज, सो v1 वेलोसिटी इज e टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले फॉर्मूला से आ रहा है। द वेलोसिटी v1 अक्वायर बाय द बॉडी आफ्टर हिटिंग द सरफेस इज e टाइम्स ऑफ v। तो v2 क्या देखा गया, v2 क्या हो जाएगा सर, e टाइम्स ऑफ v1, वो क्या बन जाएगा सर, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ v। ओ सो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, उसी तरीके से मैं बात करूं, वी एन क्या हो जाएगा, e टू द पावर n टाइम्स ऑफ v। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेलोसिटी सेम ऑफ पावर का, वेलोसिटी इज ऑफ सेम पावर, वेलोसिटी एट nth लेवल, nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, e टू द पावर n टाइम्स ऑफ v। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट वेलोसिटी आफ्टर n कोलिजन इज इक्वल टू e टू द पावर n टाइम्स ऑफ v, जिसको हम लोग बोल सकते हैं e टू द पावर n टाइम्स ऑफ रूट अंडर 2gh। ये vn हो जाएगा आपका वेलोसिटी आफ्टर n कोलिजन्स। हाँ या ना? I hope you got it. Then, if we want to calculate what is the height risen by the ball after the first collision, second collision, third collision, fourth collision, तब क्या करेंगे? तो height attained by the ball, height attained by the ball after nth rebound, तो v1 हमारा ev है, तो v1 को इन्होंने क्या लिखा, रूट अंडर 2gh1 is equal to e times of root 2gh, so h1 is equal to e to the power square, so h1 is equal to e to the power 2 times of original height h। So h2 becomes what? It is coming boiling down to be e to the power 2 times of h, e to the power 4 times of h। So in this way, अगर मैं height n निकालना चाहता हूँ, e to the power 2n times of h, so it comes in the 2n power, 2 times power, square power। So a height after nth collision is e to the power 2n times of h। What is e? Coefficient of restitution of the surface। Surface किस तरीके की कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द कमिंग क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेलोसिटी सेम, वी एन ई टू द पावर एन, हाइट ई टू द पावर ट्वाइस ऑफ एन। सो टाइम टेकन विल बी व्हाट, टेल मी, टोटल टाइम कितना लगेगा। h1 से यहाँ पे हाइट हम लोग देखेंगे, तो h1 इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 टाइम्स h क्या होता है सर, h इज टाइम इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी होता है। तो सर h क्या लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, हाफ जी टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो T1 यानी T1 इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 टाइम ऑफ टी। तो वेलोसिटी के जैसा ही है। तो Tn क्या हो जाएगा सर, Tn क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू ई टू द पावर n टाइम्स ऑफ टी। आया ना। सो ये भी फॉर्मूला है, वेलोसिटी एंड टाइम दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेम पावर। nth लेवल पे ई टू द पावर n, बट हाइट कम्स एज द पावर ऑफ ट्वाइस ऑफ टू टाइप्स ऑफ n। सो वेलोसिटी टाइम सेम टाइप के पावर पे चलता है, हाइट ट्वाइस हो जाता है। तो ये याद रखने की जरूरत है आपको, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू वांट टू ऐड द टोटल टाइम, सो पहला आप ध्यान दोगे, अगर पहली बार जब बॉल आ रहा है और गिरने वाला है विद वेलोसिटी v, फ्रॉम व्हाट हाइट, फ्रॉम सपोज हाइट h, तो उसको टाइम कितना लगेगा, t लगेगा। फिर बॉल टकराने के बाद क्या होगा बच्चा, बोलिए। टकराने के बाद वो ऊपर उठेगा, ये हाइट, फिर टकराने के बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर टकराने के बाद और थोड़ा कम ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर दिमाग लगाया जाए तो पहली बार तो बॉल बस h हाइट नीचे आया है, टाइम t लगेगा। दूसरी बार अगर t1 लग रहा है, तो दूसरी बार t1 लग रहा है, तो इधर भी t1 लग रहा है, t2 लग रहा है तो t2 लग रहा है, t3 लग रहा है तो t3 लग रहा है। और हाइट इसको अगर h2 मान ले तो ये h3 हो जाएगा, ये h4 हो जाएगा। तो जरा देखिए, टोटल टाइम विल बी 1 टाइम t, देन t1 t1, t2 t2, so 1 time t, 2 times of t1, 2 times of t2, and so on. So time is equal to t plus 2 times of t1 is e times of t, and e2 is t2 is e to the power 2 times of t, e to the power 3। what we can take common, t रहने दो, 2e को कॉमन, 2t को कॉमन ले लो, e plus e square plus e cube, ऐसा। तो समीशन ऑफ ई अप टू इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो टी आ गया आपका क्या, सो टोटल टी इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ई का सेम पावर 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। सो अगर आगे बढ़े, distance covered by the ball before it stops, how much distance is covered by the ball before it stops? So h is equal to s, if you see in the previous case, अगर मैं ये कॉपी कर सकूं, just a minute, okay, no problem। चलिए, अगर मैं इस चीज के बारे में देखूं तो व्हाट इज द हाइट, h प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस 2h4, so it will be h plus 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3। तो हाइट को e टू द पावर स्क्वायर के टर्म्स में, h1 e टू द पावर 2, h2 e टू द पावर 4, h3 e टू द पावर 6, h रहने दीजिए। 2 सब में क्या कॉमन है, h कॉमन है, e स्क्वायर कॉमन है, e स्क्वायर कॉमन लेने तो 1 प्लस e स्क्वायर प्लस टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा। सो h प्लस 2 e स्क्वायर h रहने दीजिए। समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज क्या होता है, समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर व्हेन व्हाट, व्हेन r इज लेस देन 1। आया ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, a इज कॉमन, कॉमन फर्स्ट टर्म इज 1, 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशियो, e स्क्वायर। सो h प्लस
this type. So total summation of h comes that original as 1 plus e के बदले 1 plus e स्क्वायर आ जाता है, 1 minus e के बदले e स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि हाइट में हमेशा 2 के टाइम्स चलता है, तो आप इसको याद रखने के लिए बहुत आसान वाला टूल है। टाइम में 1 plus e by 1 minus e, h में 1 plus e स्क्वायर by 1 minus e स्क्वायर। तो क्योंकि हाइट में जनरली स्क्वायर के टर्म्स में सब कुछ चलता है, सो वी कैन लर्न इट अप इन दैट वे। ओके, हाँ या ना? चलिए आगे देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस इज h टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर। क्यों 1 प्लस ई स्क्वायर? क्योंकि हाइट में ई स्क्वायर के टर्म्स में चलता है, हाँ या ना? एंड 1 माइनस ई स्क्वायर, टाइम में क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2h बाई जी, 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अगर मैं करूं a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a 1 प्लस बी 1 माइनस बी। ओके, सो ऊपर अगर ये जाएगा तो रूट अंडर जी इंटू एच, एच कैंसिल, जी एच बाई 2 बाई 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 प्लस ई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ई 1 प्लस ई। या हाउ कैन यू राइट इट? सी, इसको हम लिख सकते हैं कैसे कैंसिल हुआ, जरा देखिए। h टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई टाइम्स ऑफ, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 2h इंटू ऊपर में रूट अंडर जी आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा, 1 प्लस ई। तो 1 माइनस ई और 1 माइनस ई कट जाएगा, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर और एच कट जाएगा, रूट अंडर जी बाई 2h हो जाएगा, 1 प्लस ई स्क्वायर ऊपर में बच जाएगा, और नीचे में 1 प्लस ई प्लस 1 प्लस ई, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर आ जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, बट आपको बेसिकली ये दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए, देन यू कैन गेट एवरीथिंग, हाँ या ना? चलिए, अगर टोटल वेलोसिटी की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनली अगर बॉल को देखा जाए तो बॉल अगर हाइट h से गिर रहा है, तो बॉल गिरते 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 नेट डिस्प्लेसमेंट तो बॉल का h ही हुआ है ना, ऊपर जाके जाते 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 कहीं बॉल यहाँ जाके, तो हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट तो h ही हुआ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट h डिवाइडेड बाय टाइम, रूट अंडर 2 जी h बाई जी, 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई, हाँ या ना? तो वेलोसिटी एवरेज क्या हो जाएगा? सो आप आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको ये याद रखना है। टू फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, टाइम क्या आया? टोटल टाइम, टाइम सम इज इक्वल टू सर टी टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, आया ना? सर हाइट क्या आया? हाइट इज इक्वल टू ओरिजिनल हाइट, हाइट सम इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये दो फॉर्मूला याद है देन क्वेश्चंस बनेंगे। सो पहला क्वेश्चन आ गया हमारा इस टॉपिक का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर हाइट। अगर मैं देखूं तो एक 20 मीटर हाइट से बॉल को छोड़ा गया है, हाइट कितना है बच्चा? 20 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर जस्ट सेकेंड कोलिजन। वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर? वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड कोलिजन क्या हो जाएगा सर? वेलोसिटी सेम पावर, वेलोसिटी एंड टाइम सेम पावर, हाइट 2 टाइम्स वाले पावर में, वेलोसिटी सेम पावर में, e टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी। सर e की वैल्यू कितनी दी हुई? 0.5 का होल स्क्वायर into original velocity is root under 2gh. So what it will be? 0.25 into root under 2 times of g10 into height is how much? 20. So it will become 1 by 4 times of 2 to the 4, 420. It will be 5 meter per second. हाँ या ना? First velocity after second collision, second maximum height attained by the ball after second collision. So height after second collision is equal to e to the power 4 times of original height. E to the power यानी 1 by 2 का power 4 times into original height, what it is? 20.
So 1 by 2 ka power 4 is 2 ja 4, 2 ja 8, 2 ja 16 into 20. So it will be something like 5 by 4, that is 1.25 meter. ठीक है. थर्ड, एवरेज स्पीड फॉर द होल इंटरवल. एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? थर्ड, स्पीड एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डिस्टेंस के लिए सर ओरिजिनल हाइट h टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ओरिजिनल टाइम इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस. हाँ या ना? अगर इसको करे तो क्या आ जाएगा? सो रूट अंडर 2h बाई जी ना. सो जी बाई 2h 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 प्लस ई का होल स्क्वायर. अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा बोलो? सर 10 बाई 2 टाइम्स ऑफ 20 आई थिंक. ओके. 1 प्लस ई स्क्वायर विल बी हाउ मच? 1 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, दैट इज 1.5 का होल स्क्वायर. 2.25 आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा बोलिए? 1 यानी 1/2 टाइम्स ऑफ, अगर 1.25 बाई 2.25, 5 जा 4 4 जा 9 जा, आई थिंक 5/18 will be the total speed average meter per second. I hope you're getting it. 5/18 meter per second. हाँ या ना? Okay. Next question. Second question for the day. A ball is thrown vertically upward from the ground with the speed of 40 meter. It collides with the ground after returning. Find the total distance traveled and the time taken during its bouncing. Total distance travel. Okay. इस बार बॉल को जब उछलाया गया है तो बॉल को यहां से जमीन से ऊपर फेंका गया है. अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से फेंका गया है तो ये ऊपर जाएगा, आएगा. फिर ये बॉल ऊपर जाएगा, ये आएगा. फिर ये बॉल ऊपर जाएगा, आएगा. फिर ये बॉल ऊपर जाएगा. तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा इस पर? सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h प्लस 2 टाइम्स ऑफ h1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ h2 प्लस इन्फानाइट टाइम्स. तो अगर वेलोसिटी फेंका गया, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, यानी 2h 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ h प्लस अप टू इंफिनिटी. सर अगर मैं कॉमन ले लूँ 2h 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी. 2 हाइट रहने दो. समेशन ऑफ इन्फिनाइट जीपी सीरीज a डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर 2. अगर ध्यान दे तो 2 इंटू हाइट कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g. 40 इंटू 40 बाई 2 टाइम्स ऑफ g मतलब 10 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4. क्या हो जाएगा? 2 से 2 चला गया, 10 से 4, तो 4 4 जा 160 इंटू 4 माइनस 1 3, 4/3. I think 640/3 is the total what distance meter traveled. हाँ या ना? 640/3 is the total distance traveled. Total time also they are asking. So time अगर निकालना है तो क्या करेंगे? बोलिए, टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? सर टोटल टाइम 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 2 टाइम्स ऑफ t1
plus 2 times of t2 plus 2 times of t3 plus 2 times of t4 plus dot 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 up to infinite. So time and velocity same power. So 2t plus 2 times of e t plus 2e 2t plus 2e 3t plus dot 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 up to infinity. कॉमन क्या है? 2t कॉमन ले लो, 1 plus e square plus e cube plus dot 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 up to infinity. So 2t, sir, 1 by 1 minus e. So 2 into root under 2h by g, या टाइम कितना हो जाएगा? 2h by g, 1 by 1 minus 1 by 2. E was 1 by 2, यानी 2 into हाइट कितना था? बॉल को अगर फेंके हाइट कितना आया था? इफ यू सी व्हाट वाज द हाइट? h is equal to u square by 2g. u square मतलब 40 into 40 by 20 root under 80. 2 times of 80 into 2 divided by 10. 8, 16, 1 minus 1 by 2, 1 by 2 is 2. So 2 into 16 का root under is 4 into 2. 4 to the 8 to just 16 seconds. 16 second is the total time of flight. हाँ है ना? बातें समझ में आ रही होंगी आपको? चलिए, so this was all for today. ये आज के लिए काफी था. वी हैव डन इनफ क्वेश्चंस ऑन कोलिजन, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोलिजन, बाउंसिंग ऑफ द बॉल पे हमने कर लिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी देख लिया. एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेज चैप्टर सेंटर ऑफ मास. नेक्स्ट डे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू फ्रेश चैप्टर दैट इज रोटेशन. एंड होपफुली रोटेशन के लिए आपका पुराने कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी. सो कीप वॉचिंग द वीडियोज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए. एग्जाम्स आर कमिंग वेरी नियर, सो यू हैव टू study hard and work very hard. चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए.